राइट सो ये था ना हमारा लास्ट टॉपिक. आई थिंक यही किया था हमने लास्ट. सो टुडे विल स्टार्ट द टॉलरेंस पार्ट. In a SAP, tolerance to fix the limit. So there are three levels where we maintain the tolerance. First is GL level. GL level क्या होता है कि एक particular GL के ऊपर मैं tolerance define कर सकता हूँ कि within this limit, this GL will post the document. Other tolerance is customer and vendor tolerance. Other tolerance is user tolerance. So before going to this tolerance part, we'll have one more topic to discuss, that is T code. इसको बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन कोड्स. ट्रांजैक्शन कोड्स SAP के it starts from 2 characters and can go up to 20 characters. ये कुछ भी हो सकता है. अब ये है क्या? So there are 2 ways to do any transaction. So because just a minute, let me open it and we'll understand better. So this is the screen which we have for customization, for configuration, right? So to just open any transaction, any screen, so we have to select that particular path, this one. So we have created the field status group variant. So we have to go there and select this. And the another option is to enter the T code, transaction code here. If we enter OB29, so this is the transaction code for creating field status group variant. See, if we want to assign OB37, see, here we can assign it. So all these T codes are specific to the different transaction screens or customization screens. So there are 2 options to open it. First, to go and put the transaction code, system open kar dega. Other option is to select that particular path and click on that, and system will open that screen. Right? Okay. So for these 3 things, so we'll use the T codes. OB01. So you have to differentiate O and 0 here, right? O is complete round and 0 is not that complete round, right? So this one is OBA3 and this one is and OBA4. So we'll have to define the tolerance in system while using this T codes, OBA0. New entries. We'll put the company code VAQ. ये ले लेते हैं company code. So Shirasi will continue with this company code now. Okay. Then we'll go back OBA3. Okay, I think Ina is joined. Yes. New entries. Again, enter the company code VAQ. So there is no need to mention the amount in these 2 screens. Now we'll go to 3rd screen. So first screen
is for GL level, second is for customer vendor level, third is for user level. कस्टमर वेंडर लेवल की जो टॉलरेंस है वो हम कस्टमर लेवल पे तो टॉलरेंस हम हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हम कस्टमर लेवल की टॉलरेंस हम मेंटेन करें, बट वेंडर लेवल पे हम कभी टॉलरेंस मेंटेन नहीं करना चाहेंगे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि वेंडर हमें सर्टेन अमाउंट के बाद मटेरियल देना बंद कर दे। बट कस्टमर को हम ये कहते हैं कि इफ यू डोंट पे द लास्ट इनवॉइस अमाउंट सो विल नॉट गिव यू द अदर मटेरियल, राइट। सो वहां पर वो पॉसिबिलिटी है, बट वेंडर के केस में हम जनरली नहीं करते हैं ये। तो ये हमारे प्री रेक्विजिट्स हैं जो हमें मेंटेन करने हैं। देन विल गो टू यूजर OBA4 न्यू एंट्रीज BAQ, sorry, and will give the amount here 1000 rupees. So for now we are giving the tolerance up to 1000 rupees कि 1000 रुपए तक हम यूजर को बोलेंगे कि तुम अमाउंट पोस्ट कर सकते हो, उसके बियॉन्ड उसकी लिमिट नहीं है, राइट। तो जब उसको अगर एक्स्ट्रा लिमिट देनी है देन यू विल कम बैक अगेन इन दिस स्क्रीन एंड चेंज द अमाउंट, इंक्रीज द अमाउंट। जस्ट ए मिनट। सॉरी, सो ये हमने सेव कर दिया। सो 1000 रुपीज का लिमिट हमने फिक्स किया है, अप टू 1000 रुपीज यूजर अलाउड है पोस्टिंग करने के लिए। नाउ वी हैव अदर टॉपिक टू डिस्कस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो यहां से हमारे थोड़ा अकाउंटिंग रिलेटेड एक्टिविटी स्टार्ट होंगी। चार्ट ऑफ अकाउंट्स। Chart of account in general language is a list of GL. List of GL means हमारे पास दो तरह के हेड्स होते हैं, बैलेंस शीट, PL, लाइबिलिटीज, एसेट्स, एक्सपेंस, रेवेन्यू। तो यहां पर हमारे पास लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटीज में हमारे पास शेयर कैपिटल होता है, राइट, रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है। देन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को हम फर्दर बाइफर्केट कर सकते हैं, इसमें से हम ओवरड्राफ्ट, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में ले लेंगे ना ओवरड्राफ्ट। okay. इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, कुछ लोन एंड एडवांसेस हो सकते हैं, तो एक तरह से हमने कर दिया। देन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के अंदर हम यहाँ पर ले सकते हैं। सर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट तो एसेट साइड में नहीं आती है। इन्वेस्टमेंट दो साइड टाइप की होती है ना, अगर आपने इन्वेस्टमेंट ली हुई है तो लाइबिलिटीज दी हैं तो एसेट्स है। ओके, लोन एंड एडवांसेस, sundry debtors, then duties। सर ये सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं आएगा? हाँ सॉरी, sundry creditors आएगा। हाँ यस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसके बाद यहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ओवरड्राफ्ट हो सकता है, राइट। सो ये हमारे ग्रुप्स हो सकते हैं मेजर, जिसको हम फर्दर बाइफर्केट करते हैं यहां पर GL अकाउंट ग्रुप्स में। सो हम GL के अकाउंट ग्रुप्स बनाते हैं यहाँ पर। सो इस लेवल पे हम लोग बाइफर्केट करते हैं। देन यहां पर हम इसको बाइफर्केट करते हैं, करंट एसेट्स,
इसको हम कर सकते हैं करंट एसेट्स में सन्ड्री डेटर्स नंबर 1। इसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ भी आ जाएगा, जो हमारे टैक्स इनपुट्स होंगे वहाँ आउटपुट आ जाएगा या इनपुट आ जाएगा। देन हमारा हो जाएगा स्टॉक लोन एंड एडवांसेस, क्या बोले हैं स्टॉक यस लोन एंड एडवांसेस। So there will be prepaid expenses. Yes, prepaid And expenses. there will be outstanding expenses also, I think, Outstanding in the expenses हाँ liabilities में आ सकते थे वो। liability side. Prepaid expenses और क्या आ सकता है, चलिए इतना ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम कर सकते थे इसको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट। तो ये हमारे हो गए करंट एसेट्स। देन आते हैं हम नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहले हम फिक्स्ड एसेट्स को अलग करते हैं, देन उसके बाद अदर एसेट्स को, अदर नॉन करंट एसेट्स। ये तो फिक्स्ड एसेट्स को हम फर्दर बाइफर्केट कर सकते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में, राइट। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी में, लैंड एंड बिल्डिंग में। सो इस तरीके से हम लोग बाइफर्केट करेंगे। अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर इसमें आप जो भी आपके प्रोविजंस वगैरह हो सकते हैं, अगर कुछ इस तरीके का कुछ है तो वो कर सकते हो आप। अगर कोई लॉन्ग टर्म कुछ प्रोविजंस वगैरह बनाया हुआ है तो प्रोविजन यहाँ भी आ जाएगा आपका इस साइड पे, राइट। यहाँ भी प्रोविजन आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में भी आ सकता है वो, प्रोविजन में भी आ सकता है वो, तो दोनों को हम ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। एक्सपेंसेस को आप डायरेक्ट कर सकते हो, इनडायरेक्ट कर सकते हैं हम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फर्दर बाइफर्केशन कर सकते हैं। मटेरियल का कंजम्पशन हो सकता है, राइट। इसके अलावा लेबर हो सकता है, लेबर को एक हेड बना दो आप, पावर का एक हेड बना दो, सपोज आप कोई फ्रेट रिलेटेड कोई हेड बना दो। ऐसे इनडायरेक्ट के अंदर भी आपके पास सैलरीज का एक ग्रुप बना दो, राइट। इसमें एडमिन एक्सपेंस का कोई और ग्रुप बना दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का कोई ग्रुप बना दो। देन रेवेन्यू में भी आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। तो डायरेक्ट में आप अपने फिनिश गुड्स का सेल दिखा सकते हो, इस कोई सर्विस सेल करते हैं वो दिखा सकते हैं, उसका ग्रुप बना दीजिए। एफजी सेल में भी अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के एफजीज हैं जिसको आप फर्दर बाइफर्केट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। इनडायरेक्ट में आप कोई बैंक का इंटरेस्ट दिखा दो, कोई डिविडेंड्स दिखा दो, इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स, राइट। तो ये आपके फर्दर बाइफर्केशन है। ये जो बाइफर्केशन है इसको बोलते हैं जीएल अकाउंट ग्रुप्स, राइट। बाइफर्केशन ऑफ ग्रुप्स और चार्ट ऑफ अकाउंट, इट्स कॉल्ड जीएल अकाउंट ग्रुप्स। सो अब हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो हैं 3 टाइप के होते हैं। ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट, कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट। अच्छा, हमने 2 चीजें डिस्कस की थी कि हम फिस्कल ईयर वेरिएंट को किस लेवल पे असाइन करते हैं। फिस्कल ईयर वेरिएंट किस लेवल पे असाइन होता है? क्लाइंट लेवल पे क्रिएट होता है वो फिस्कल ईयर वेरिएंट। सर क्लाइंट लेवल पे, क्लाइंट लेवल पे। फील्ड स्टेटस ग्रुप वेरिएंट, चलिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक चार्ट बना के देता हूँ। कंपनी कोड, फिस्कल ईयर वेरिएंट, फील्ड स्टेटस ग्रुप वेरिएंट, जीएल डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, राइट। इसका रिलेशन बनाते हैं। सो हाउ मेनी फिस्कल ईयर वेरिएंट कैन बी असाइंड टू वन कंपनी कोड?
how many fiscal year variant can be assigned to one company code? हम एक फिस्कल ईयर वेरिएंट कितने कंपनी कोड को असाइन कर सकते हैं, या एक कंपनी कोड में कितने फिस्कल ईयर वेरिएंट हो सकते हैं? सर फिस्कल ईयर वेरिएंट तो एक ही होगा. अच्छा, एक फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या कंपनी कोड मल्टीपल कंपनी कोड असाइन हो सकता है? यस सर. अच्छा, इसका मतलब n/1 का रिलेशन होता है. हाँ, ये ठीक है. क्या ये पॉसिबल है? हमने डिस्कस किया था कि कोई भी असाइनमेंट, जब भी कोई चीज, कोई भी वेरिएंट क्रिएट होता है या कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, या तो वो क्लाइंट लेवल पे करते हैं या कंपनी कोड लेवल पे करते हैं. तो जो फिस्कल ईयर वेरिएंट है वो किस लेवल पे क्रिएट होता है? क्लाइंट लेवल पे सर. इसका मतलब ही यही होता है. इसका ये डेफिनेशन ही नहीं है. नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. ओके, अब सेम इसका होता है. ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है. इसके साथ क्या रिलेशन होता है? डॉक्यूमेंट नंबर रेंज किस लेवल पे क्रिएट होती है? पढ़ाई नहीं हो रही. डॉक्यूमेंट नंबर रेंज तो कंपनी कोड पे होती है ना. कंपनी कोड पे होती है. देखिए मैंने बहुत क्लियरली यहां लिखा भी होगा, डिफाइन एट कंपनी कोड लेवल. सो इसका मतलब क्या हुआ? दैट मींस हर कंपनी कोड की अलग नंबर सीरीज होगी. दैट मींस सेम नंबर हर कंपनी कोड में अप्लाई होगा. ये इसका मीनिंग है, राइट? तो ऐसा ही अब हम बात कर रहे हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स की. अब आपके पास सपोज एक है कंपनी कोड 1, एक है कंपनी कोड 2, एक कंपनी कोड 3, एक कंपनी कोड 4, एक कंपनी कोड 5. ये है IN1, IN2, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, US. राइट? सो कंपनी कोड और चार्ट ऑफ अकाउंट का जो रिलेशन है, मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूं यहां पर. कंपनी कोड और चार्ट ऑफ अकाउंट का जो रिलेशन है वो है 1:n, बिकॉज चार्ट ऑफ अकाउंट इज अगेन असाइन क्रिएटेड एट क्लाइंट लेवल. इट मींस मल्टीपल कंपनी कोड्स आर असाइन कैन बी असाइंड टू वन चार्ट ऑफ अकाउंट. Chart of account may be 1. So one chart of account can be assigned to multiple company codes. वो कौन सा चार्ट ऑफ अकाउंट है? वो ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट है. सो दिस इज इट required and these two are optional. Operating chart of account is a required chart of account. Country chart of account and group chart of account are the optional chart of account. These are dependent on the business process or the company's requirement. So this is the scenario where we have multiple chart of account, multiple company codes are assigned to one chart of account. Right? Just a minute.
So operating chart of account is the required chart of account. These two are the optional chart of account, and one operating chart of account. I just mentioned one operating chart of account can be assigned to multiple company codes because chart of account is created at client level. क्लाइंट लेवल का मतलब ये है कि वो अबव कंपनी कोड है, कंपनी कोड के एक अबव लेवल पे है वो. सो नाउ दीज कंपनी कोड्स आर यूजिंग वन चार्ट ऑफ अकाउंट. अब इसके अंदर क्या फंडामेंटल रहता है, अगर आपके पांचों बिजनेस सेम नेचर के हैं फिर हम जनरली एक ही ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन कर देते हैं. अगर ये सेम नेचर ऑफ बिजनेस हैं उस केस में हम चार्ट ऑफ अकाउंट डिफरेंट बनाते हैं. बट यहां पर अभी हम उससे पहले एक दो पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं. सो देयर आर टू ऑप्शंस हियर. वन इज दी सिनेरियो वन एंड अदर वन इज दी सिनेरियो टू. सिनेरियो टू में ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट वन, chart of account 2, chart of account 3, chart of account 4, chart of account 5. तो पहला सिनेरियो ये था, दूसरा सिनेरियो ये. सो पहले सिनेरियो में क्या था कि आपने सभी कंपनी कोड को एक ही चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन कर दिया. दूसरा सिनेरियो क्या है, एवरी कंपनी कोड हैविंग देयर ऑन चार्ट ऑफ अकाउंट. तो यहां पर और यहां पर जो रिक्वायरमेंट है, अब हम क्या चाहते हैं, जब हम कोई जीएल क्रिएट करते हैं, while doing this GL creation, Amit, yes, चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक हो या डिफरेंट तो इससे फर्क क्या पड़ता है? हाँ, इससे फर्क ये पड़ेगा, अभी आते हैं हम लोग इस पॉइंट पे, यहाँ आके आपको डिस्कस करने को मिलेगा. जीएल क्रिएशन में जब हम जीएल क्रिएट करते हैं, देयर आर टू स्क्रीन्स. टू स्क्रीन. फर्स्ट स्क्रीन इज चार्ट ऑफ अकाउंट स्क्रीन, सेकंड इज कंपनी कोड स्क्रीन. चार्ट ऑफ अकाउंट स्क्रीन में क्या होता है, सबसे पहले वो मांगता है जीएल कोड नंबर 1, नंबर 2 फिर वो मांगता है चार्ट ऑफ अकाउंट, फिर वो मांगता है टाइप ऑफ जीएल, फिर वो मांगता है अकाउंट ग्रुप, देन वो मांगता है शॉर्ट टेक्स्ट, नेम ऑफ द जीएल सपोज. तो एसएपी के अंदर जो जीएल कोड है वो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर हो सकता है. मैक्सिमम 10 कैरेक्टर मतलब वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो अल्फान्यूमेरिक भी हो सकता है. जो चार्ट ऑफ अकाउंट है दैट इज आल्सो मैक्स 4 कैरेक्टर. सो यहां पर जो आपने जीएल क्रिएट किया, इस जीएल को आपने नाम दिया सैलरी एक्सपेंस. इस जीएल का आपने कोड रखा सपोज 4001. चार्ट ऑफ अकाउंट आपने सपोज सेम दिया VAQ. एक सेकंड, VAQ is the chart of account. Type of GL, it is P&L और बैलेंस शीट. क्या टाइप है ये, किस टाइप का जीएल होगा ये? सैलरी, दिस विल बी P&L. सो आपने यहां पर सेलेक्ट किया P&L, आपने सॉरी यहां पर दिया आपने ये, और इसका ग्रुप हमने रखा हुआ है सपोज VA04. ये जो पहला स्क्रीन है, ये जो फर्स्ट स्क्रीन है, अगर आपका सेम ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट है इन सभी पांचों कंपनी कोड में, तो ये फर्स्ट स्क्रीन कभी डिफरेंट हो ही नहीं सकता इन पांचों कंपनी कोड के लिए. ये डिफरेंस है कि आपका सिंगल चार्ट ऑफ अकाउंट होगा
या मल्टीपल चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन होगा। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको एक जीएल पे क्रिएट करनी है एक कंपनी कोड के लिए, तो यही कॉमन रहेगी पांचों कंपनी कोड के लिए। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया एक कंपनी चाइना की है। अब चाइनीज क्या बोलते हैं कि मुझे तो इंग्लिश में नहीं चाहिए नाम, चाइनीज में दो, राइट? अगर यहां पर आपको सैलरी लिखना पड़ रहा है चाइना में, राइट, तो आपको यहां पर कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट यूज करना पड़ेगा। देखिए क्या है, अब हम यहां पर ऑप्शंस पे आते हैं कि चलिए इस पॉइंट को अभी हम छोड़ते हैं, अभी के लिए छोड़ते हैं, पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि अगर आपका चार्ट ऑफ अकाउंट कॉमन है, अगर आपका चार्ट ऑफ अकाउंट कॉमन है तो ये इंफॉर्मेशन किसी भी कंपनी कोड में डिफरेंट नहीं हो सकती। अगर इस कंपनी कोड का जीएल 4001 होगा तो वो सैलरी एक्सपेंस ही होगा, इस कंपनी में भी वही होगा, इसमें भी वही होगा और इसमें भी वही होगा। ये चार्ट ऑफ अकाउंट है हमारा ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट। तो ये स्क्रीन है हमारी फर्स्ट स्क्रीन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपनी कोड लेवल स्क्रीन पे। कंपनी कोड लेवल स्क्रीन में क्या आता है? इसमें आता है हमारे पास करेंसी, इसमें आता है हमारे पास टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टैक्स कैटेगरी। इसके अंदर दो तरह की स्क्रीन्स हैं कंपनी कोड स्क्रीन में, स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन कंपनी स्पेसिफिक होती है, क्योंकि अगर वो इंडिया है तो वो आईएनआर होगा, अगर वो यूएस है तो वो यूएसडी होगा, अगर वो चाइनीज है तो चाइनीज येन होगा, या फिर चाइनीज जो भी उनका करेंसी है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा, राइट? तो ये करेंसी होगी कंट्री स्पेसिफिक, बट ये इंफॉर्मेशन होगी कॉमन। इसमें कोई डाउट, कोई पॉइंट इसमें? सर व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज कि जो ये स्क्रीन 1 है हमारा, तो इन केस जो स्क्रीन 2 में चाहे हमारा जो भी डेटा हो, एज इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर है या यूएसडी है, हमारा ये सैलरी एक्सपेंस will come under GL code 4001 only? Yes. And chart of account will be VAQ only? Yes, common chart of account. It will be common, as in it will be allocated here only? Yes. Okay. If in case you are using second scenario, in this case 4001 GL for first company code, you are using salary for salary expenses. For other company using 4040 for salary expenses, this company using 4080 for salary expenses. वो numbers जो ये वाला first screen है, ये आपका specific to country होगा या specific to company code होगा, because every company code using the separate chart of account, individual chart of account. So अगर आप common chart of account use करेंगे तो आपके लिए उसका advantage भी है, disadvantage भी है। एडवांटेज आपके लिए सबसे बड़ा ये है कि सिंगल चार्ट ऑफ अकाउंट यूज होगा एंड आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं। तो आप एक ही चार्ट ऑफ अकाउंट पे पूरा कंपनी का, पांचों कंपनीज का रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ले सकते हैं, जिसमें आप कस्टमर की डिटेल चाहिए, वेंडर की डिटेल चाहिए, बिकॉज कॉमन जीएल है, आप कंसोलिडेशन बहुत इजीली कर सकते हैं इफ इन केस यू आर यूजिंग सिंगल चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर ऑल दीज कंपनी कोड्स। In case you are using separate chart of account, then in this case you don't have any consolidation option available. But in SAP there is one more option, number 3, you can create group chart of account. In this case also you can group your books, you can consolidate your books by using group chart of account.
सो यहां पर चार्ट ऑफ अकाउंट, नंबर ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट कितने हैं? 6, यहां पर 1. So the purpose of the consolidation is give you the exact reason for generating single chart of account or multiple chart of account. So how is it 6? 5 and group chart of account 1. One group chart of accounts. Okay. Here it's only 1. Now the consolidation of Correct. books is very easy. In this case, consolidation is there, but जो group chart of account है उसकी भी कोई limitations है. Because at that frequency you cannot get that consolidation report. It's little bit complicated process, right? ये भी हो सकता है कि सपोज ये 2 कंपनीज यूज कर रही हैं एक चार्ट ऑफ अकाउंट, बाकी 3 कंपनी यूज कर रही हैं दूसरा चार्ट ऑफ अकाउंट. So 5 companies are using 2 chart of account. So in this case again you can group it, these 2 chart of account, by using group chart of account. Any doubt? So can you repeat the last point? Right. Suppose these 2 companies are using one chart of account, one operating chart of account, Okay. and these 2 are using other operating chart of account. Again you can consolidate your chart of account. So in this case these 2 will group together and these 3 will group together. This group chart of account 1 and this group chart of account 2. ये भी possibility है. So ये जो dependency है, complete, it's a business process. Company will tell you what chart of account you will use for this company code and what will be used for this company code. That depends on the decision of your implementation company or wherever you are implementing SAP. उनका अपना स्ट्रक्चर समझने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम लोग किस प्रोसेस पे जाएंगे. So do we any requirement? Do we require this group chart of account? Because why we use this group chart of account? Because we have to group operating chart of account together. Any doubt? No, sir. Why I use this term optional? Because optional is what? If there is a use, then go for this functionality. Else, leave it. Now we'll come to this country chart of account. Suppose using one operating chart of account, ये scenario है. But China बोलता है मुझे तो English समझ में नहीं आती है, मेरे लिए अलग से language लिख के दो. Then you can use country chart of account. So what China will do? China will have 2 chart of accounts. One is operating, other one is country. So if somebody is there who understands the English language, they can go and use the same operating chart of account, which is used by other company codes. Other part is, if a person who doesn't understand the English in China, they can use the operating country chart of account. तो पर्पस जो है वो क्या है? हमें अपने बिजनेस प्रोसेसेस को ईज करना है, so that everyone can understand, everyone can use that SAP system. So that is the ultimate purpose of SAP. SAP एक ground, because it's a open tool जिसको आप जैसा चाहो मोल्ड कर लो. डिपेंड्स कि आपकी लैंग्वेज, आपका रिक्वायरमेंट क्या है. कोई पॉइंट, कोई डाउट इसमें?
बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है यही इसी लेवल पे अंडरस्टैंड करना, अदरवाइज आप हमेशा से प्रॉब्लम में रहोगे, इन फ्यूचर हमेशा डाउट में रहोगे, बिकॉज इससे रिलेटेड ही अब सब डिस्कशन होने वाला है आगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछ लो अभी। Sir, I'm okay for now. Okay. Altaf, Ansh, Tina. Okay. So मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। Chart of account is a 4-digit key that can be same as company code. हम chart of account भी VAQ बना लेंगे। It's created at company code level. It's created at client level. There are 3 different chart of accounts: operating chart of account, country chart of account, group chart of account. Operating is required, others are optional, right? Chart of account can be assigned to multiple company codes, but one company code can not have multiple operating chart of accounts. Multiple operating chart of accounts. अगर मैं ये टर्म बोलता कि कैन नॉट हैव मल्टीपल चार्ट ऑफ अकाउंट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती, बिकॉज कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट भी ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट की तरह कंपनी कोड को ही असाइन होता है, बट कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट इज ए ऑप्शनल चार्ट ऑफ अकाउंट, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी यूज दैट। Okay. Then operating chart of account can be assigned to multiple company codes, right? If all company codes are using their own chart of account, then we can group it through group chart of accounts. So while creating the GL, what is the purpose of using country chart of account? Because if some country wants to change all these informations specific to their country or their company, then they can use their own country chart of account. They will go and use as whatever they want to see. Right? So purpose of this chart of account, group chart of account is we can group it to operating chart of account with one group chart of account. Here we can even multiple operating chart of account can be grouped to one with group chart of account. So ये हो गया हमारा understanding point. Now we'll go and create the chart of accounts. Okay, SPRO में चलेंगे. Go to financial accounting new, general ledger accounting, business transactions, master data, GL accounts, preparation, edit chart of account list. Click new entries. Chart of account को भी हम similar रखते हैं कंपनी कोड के. क्या था कंपनी का नाम? Vacom. VAQAM. VAQAM. Okay. So the language of chart of account will be English, and the length of the GL is maximum 10 characters. आप जब टैली में GL बनाते हो तो कौन सा कितने कोड्स देते हो आप टैली में GL क्रिएट करने के, लेजर क्रिएट करने के? कितने कोड मेंटेन होते हैं टैली में? टैली के अंदर कोड होता ही नहीं है एक्चुअली. टैली में नाम होता है. जो हमारा ये है, ये जो नाम है, ये टैली का कंप्लीट कोड है, बट हमारे यहाँ पर कोड अलग है, नाम अलग है.
राइट। सो हमारा कोड कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, नाम डुप्लीकेट हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग डुप्लीकेट चेक लगाते हैं। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर फिल नहीं करेंगे, अभी सेव करते हैं, बैक करेंगे, असाइन करेंगे ASAP 044। अगर कोई इसको यूज कर रहा है तो SM12 में जाओ, उसकी आईडी डालो और उसके सेशन को किल कर दो, सो दैट वो हमारे लिए फ्री हो जाएगा। VAQ राइट। ये कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट असाइनमेंट है। इफ it's required, then we'll create one country chart of account. The process for creation is same, but जो भी chart of account यहाँ assign होगा, that would be considered as a country chart of account. तो हम यहाँ पर भी ये assign कर सकते थे। So multiple company codes को हम एक chart of account assign कर सकते हैं। Next आते हैं account groups create करेंगे, new entries. So हमारे पास ये different type of account groups हो सकते हैं, ये सब type के, राइट। बट हम मेजरली 4 ही बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे इसमें, VAQ इज अवर चार्ट ऑफ अकाउंट, उसके अंडर में हम 4 ग्रुपिंग करेंगे, VA01 या V001, V002, P and 4। हाँ, इस ग्रुप को हम लायबिलिटीज डिफाइन करेंगे, इसको हम एसेट्स डिफाइन करेंगे, इसको एक्सपेंस करेंगे, इसको रेवेन्यू करेंगे, इसको एक्सपेंस करेंगे। इसको नंबर देंगे हम 1001 to 1999। 4 डिजिट बना रहे हैं हम, मैक्सिमम बना 10 सकते हैं, बट हम यूज 4 करेंगे। आप लोग इससे ज्यादा भी ले सकते हो, आप लोग अपने टेस्टिंग के लिए मल्टीपल इसमें और नंबर्स ऐड कर सकते हो। अगर मैं आपको एक्चुअल अगर बिजनेस का प्रोसेस दिखाऊं, देखिए कैसे होता है वो। GL अकाउंट, ये हमारे रियल जो एक्चुअल हम बनाते हैं BBPs, ये वो हैं। देखिए यहाँ पर कितने अकाउंट ग्रुप्स क्रिएटेड है, हमने 4 बनाए हैं, बट जो रियल टाइम जो होता है, बहुत सारी कंपनीज के अपने डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। देखिए ये सारे अकाउंट ग्रुप्स हैं। एक कंपनी की रिक्वायरमेंट थी, उनको टेंजिबल इंटेंजिबल अलग करना है। A फॉर एसेट्स लिया हुआ है इन्होंने, L फॉर लायबिलिटीज लिया हुआ है नीचे यहाँ पर, A03 फिक्स्ड एसेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिया हुआ है इन्होंने। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप लायबिलिटी साइड भी लेके जा सकते हो, बट इन्होंने एसेट पे रखा हुआ है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है इन्होंने, डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड प्रोविजन रखा हुआ है, लोन एंड एडवांसेस हैं, करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स प्रीपेड हैं, अदर क्लियरिंग है। उसके बाद फिर लायबिलिटी स्टार्ट हो गई। कुछ कंपनीज जनरली जो रहता है वो 35-40 अकाउंट ग्रुप्स रहते हैं, बट इन्होंने 100+ बनवाए हुए हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमने किया था, वहां हमने बनाया था। एक्सपेंसेस में इन्होंने ये किया हुआ, देखिए ये सारे एक्सपेंसेस हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, ये लायबिलिटीज होगी, ये रेवेन्यू हो गया R से। तो इस तरीके से भी ग्रुपिंग की जा सकती है, ये रिक्वायरमेंट के बेस पे है, आपको कैसे चाहिए। SAP पे चलते हैं, बैक करेंगे, डिफाइंड रिटेन अर्निंग्स पे आएंगे, ब्लॉक बाय 093। रिटेन अर्निंग्स क्या होता है? अगेन हेलो, रिटेन अर्निंग्स क्या होता है? रिटेन अर्निंग होता है जो हम जितने भी हमारी मतलब इनकम है, हम उसमें से कुछ अमाउंट रिजर्व करके रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं, जो कि हम बाद में कभी भी यूज कर लेते हैं। इसको हम नेट प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं। ये हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस होता है। ओके।
राइट। सो जो भी हमारा एंड ऑफ द ईयर जितना भी नेट प्रॉफिट और लॉस निकलेगा वो रिटेन अर्निंग्स होता है हमारा। इसको हम अभी एक्स लगा के छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक्स हम सिंगल डिजिट में डिनोट इसको करेंगे रिटेन अर्निंग्स को। सो यहाँ पर हम एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी ये येलो आ रहा है, तो येलो क्या होता है हमारा वार्निंग, एंटर करके बाईपास कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीपल भी हो सकते हैं रिटेन अर्निंग्स। अगर आपको डिफरेंट कुछ ऐसे पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हैं या ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा पार्ट है जो आपको किसी दूसरे साइड पे दिखाना है, इसमें नहीं दिखाना है, तो आप यहाँ पर एक्स वाई भी कर सकते हो। अदरवाइज ये कैरेक्टर्स आपका कोई भी हो सकता है, सिंगल कैरेक्टर। ओके, तो ये एक्टिविटी हमारी थी कॉन्फ़िगरेशन की। अब हम फर्स्ट टाइम एंड यूजर एक्टिविटी पे चलेंगे, जिसमें हमारा एंड यूजर के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। कितने टाइप का डेटा मेंटेन करते हैं हम लोग? टाइप ऑफ डेटा क्या होता है? कितने टाइप का डेटा होता है? कॉन्फ़िग डेटा, मास्टर डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा। सो अभी हम मास्टर डेटा क्रिएट करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग जो आप अंश बात कर रहे थे वो ये था, जो आप बुक आपके पास में है वो इसकी बुक है, एंड यूजर की। जी सर। मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, सेंट्रल। So there are 3 options to create one GL master. बट सर उसमें पोस्टिंग दे रखा है, इसमें तो कहीं पोस्टिंग ही नहीं आ रहा था। हाँ, पोस्टिंग का यहाँ पर है। ये यहाँ से होती है पोस्टिंग्स। ओके। So there are 3 levels where we can create the GL. One is the centrally, second is chart of account level, third is company code level. Either first go for this and have to do this, or there is an option to do all these activities together with centrally. तो हम पहले चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल देखते हैं, फिर कंपनी कोड लेवल देखते हैं, फिर मैं आपको सेंट्रली दिखाता हूँ। तो पहला हम जीएल क्रिएट करते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे। First GL will create 1001. BAQ is the chart of account. Then click on this button, create button. So is it a balance sheet or P&L? 1001 क्या रखा था हमने? Sir, liabilities. Liabilities. So balance sheet? Balance sheet. Right. Liability select करेंगे। अगर आप यहाँ asset select करेंगे तो सिस्टम ये एरर देगा। क्या एरर है ये? So it is saying that assets को हमने 2001 से 2999 तक डिफाइन किया हुआ है। Asset grouping doesn't fall because the number series which we have taken it's not falling in this group. It falls in liabilities. Can we select P&L here? No. Yes, we have option. Okay. It's an option. We can do that, but it's a mistake. But SAP allows. Okay. तो हम यहाँ पर P&L भी select कर सकते हैं by mistake. But we'll select this. अगर किसी को नहीं पता है GL creation में कि इसको liability बोलते हैं, तो वो P&L भी create करके चला जाएगा। तो सर वो मतलब it will not show any error. No. But otherwise it will be as in by the books it. Provision for expenses, provision for salary. आप इंडिया में बोलते हो expense है, sorry liabilities है. Liability, right. But हो सकता है ब्राजील में इसको expense बोला जाता हो. Correct. Right. तो depends on the accounting standards. देखिए आपके अपने अकाउंटिंग नॉलेज पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। SAP तो सब कुछ बोलता है कर दो। SAP कहीं भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता आपको, बिकॉज बेस्ड ऑन योर अकाउंटिंग नॉलेज आप सिस्टम बिल्ड करते हैं। अगर अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है तो फिर सिस्टम का तो आप मतलब बिल्कुल ही बैंड बजाएंगे। SAP अलाउ करता है आपको कुछ भी करने को।
बट आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें आप बेस्ट कर सकते हो। सैलरी प्रोविजन या सैलरी पेएबल, तो ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन है। तो मैंने आपको बोला था कि जीएल अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ जीएल, अकाउंट ग्रुप और नाम, ये आपने डिफाइन कर दिया, सेव कर देंगे। अब ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, अगर ये जितने कंपनी कोड्स के साथ असाइंड है, उन कंपनी कोड्स में आपका ये जो जीएल होगा ये सैलरी प्रोविजन का होगा, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। अगर आपने बाय मिस्टेक चेंज कर दिया तो वो एप्लीकेबल सभी के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम आते हैं कंपनी कोड लेवल पे। सेम जीएल, कंपनी कोड VAQ, अब हम यहां पर लेंगे। तो यहां पर दो स्क्रीन है, एक ये और एक ये। यहां पर जो फर्स्ट स्क्रीन है वो है कंट्रोल डेटा की, ये है अकाउंट करेंसी। कहां से आया ये करेंसी? जो हमने कंपनी कोड क्रिएट किया था, यस, वहीं से। yes, so we have created company code where we have given this INR. So first we will talk about currencies. There are three different type of currencies in SAP. One is local currency, another one is document currency, third one is reporting currency. लोकल करेंसी मैक्सिमम इज 1, एक ही लोकल करेंसी हो सकती है किसी भी कंपनी कोड की। डॉक्यूमेंट करेंसी कैन बी n नंबर्स। रिपोर्टिंग करेंसी ECC एंड HANA, because it's a latest version of SAP HANA. In ECC you can maintain maximum 3 currencies and in HANA maximum 10 currencies. इसका मतलब क्या है? आपकी कंपनी इंडिया में है, आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट लोकल करेंसी की है, बिकॉज बैलेंस शीट देनी है, टैक्सेस की रिपोर्ट देनी है, कस्टमर वेंडर देने हैं, ये सारी आपको अपनी गवर्नमेंट के जो कंप्लायंसेस हैं वो भी फुलफिल करने हैं, टैक्स कंप्लायंस है वो भी फुलफिल करने हैं। तो वो सब करने के लिए लोकल करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें आपकी जो करेंसी है वो लोकल करेंसी में रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। अब दूसरा आता है डॉक्यूमेंट करेंसी। डॉक्यूमेंट करेंसी का क्या मतलब है? जिस करेंसी में आप डील करने जा रहे हैं कस्टमर या वेंडर के साथ, उसको डॉक्यूमेंट करेंसी बोलते हैं। डॉक्यूमेंट करेंसी का क्या मतलब हुआ? आपके पास इंपोर्ट का बहुत बड़ा प्रोसेस है, 10 डिफरेंट कंट्री से आप इंपोर्ट करते हैं, तो 10 डॉक्यूमेंट करेंसी आपकी बुक्स में हो सकती है, जिसकी आप कन्वर्जन लगा के, एक्सचेंज रेट कन्वर्ट करके आप उसको करेंसी लोकल में ले आएंगे, राइट? तो आपकी जो रिपोर्टिंग करेंसी है, आपकी लोकल करेंसी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और रिपोर्टिंग करेंसी में आप मैक्सिमम 3। अब सपोज आपकी कंपनी इंडिया में है, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स बैठा हुआ है कोई यूएस में, कोई यूके में, कोई ऑस्ट्रेलिया में। वो बोलते हैं कि हमें हमारी करेंसी में रिपोर्ट दो और हमारे फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट दो, तो आप वो भी कर सकते हो एसएपी के अंदर, वो ऑप्शन अवेलेबल है। और हाना में तो मैक्सिमम 10 लेवल तक की करेंसीज मेंटेन हो सकती है। तो डिफरेंट करेंसीज रिपोर्ट्स अगर आपको देखनी है तो रिपोर्टिंग करेंसी यूज करेंगे। तो ये जो करेंसी है ये लोकल करेंसी है अभी के लिए। Now it comes automatically from company code, number 1, but we can change with other foreign currency. If in case of change to foreign currency, then system will not allow any document in any other currency
if in case of change to foreign currency, then system will not allow any document in any other currencies. Then system will not allow to post any document in any other currencies. इसका मतलब क्या है? अगर हम इस करेंसी को यहां पर यूएसडी कर देते हैं, अब जब ये जीएल में पोस्टिंग होगी तो रिस्ट्रिक्ट हो गया कि यूएसडी में पोस्ट होगा, अब आईएनआर में भी पोस्ट नहीं हो सकता। हम इस जीएल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है हमने कि ये जीएल पोस्ट होगा तो सिर्फ यूएसडी में ही होगा, किसी अदर करेंसी में पोस्ट नहीं हो सकता। क्या हो सकता है केस? हमने सपोज हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो एम्प्लॉयज इंडिया में बैठे हैं और वो यूएस में बैठे हैं, उनको सैलरीज हम आईएनआर में देते हैं और उन जो यूएस एम्प्लॉयज हैं उनको हम यूएसडी में पे करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस यूएसडी वाले जीएल में सैलरी प्रोविजन का जो जीएल होगा यूएसडी वाला, उसमें कोई और करेंसी में डॉक्यूमेंट पोस्ट हो ही ना। देखिए एसएपी का अल्टीमेट पर्पस क्या है? एसएपी का अल्टीमेट यूज है चेक्स एंड कंट्रोल्स। सो यू कैन मेक all the checks and controls. You can apply all the checks and controls in the system where user is completely restricted, right? जितना भी उसको एक्सेस दिया गया है सिर्फ उतना ही एक्सेस वो कर पाएगा, अदर एक्सेस उसको अलाउ नहीं होगा। तो हम जो सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं वो यूजर्स के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसको अभी हम आईएनआर ही कर रहे हैं। आप लोग अप्लाई करके देखेंगे। ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी, ये जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम डिफरेंट किसी भी करेंसी में जब डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं तो उसको हम लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसकी रिपोर्टिंग हम लोकल करेंसी में देखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट फील्ड है ये। Okay. One. This field is free for all the GLs except two GLs are as follows. This field is free for all the GLs except two GLs are as follows. One is GR IR clearing account and cash discount clearing account. Right? So इन दो GLs के लिए ये फील्ड मैंडेटरी है। This field is free for all the GLs. इसका मतलब, या मैं इसको ऐसा लिखता हूं, this field is optional for all the GL except two GLs are as follows. This one. इन दो GLs पे अगर आप टिक नहीं लगाएंगे तो सिस्टम एरर थ्रो करेगा। नेक्स्ट, टैक्स कैटेगरी। यूज फॉर indirect tax like GST. Okay, so the GLs where GST applies are used for
and enable for those GLs. Where the GL where GST applies are used, where GST applies and इसको हम थोड़ा इसको लैंग्वेज चेंज करते हैं. The GL where GST applies are used for those GLs. सेंस बन रहा है इसका? The GL where GST applies are used for those GLs. So जहां पर GST अप्लाई होता है, जिन GLs पे GST अप्लाई होगा, only those GLs are enabled with this functionality, with this field. ऐसे कौन से GLs होते हैं जिनके ऊपर GST अप्लाई होता है? हमारी बुक्स में ऐसे कौन से GL हैं जिसपे GST लगता है? सर जो हमारा सेल्स, जो भी इनवॉइसेस हम सेल्स के लिए रेज करेंगे, ये थोड़ा सही बनता है. The GL where GST applies are used with this field. ठीक है. सेल के लिए और कौन से GLs होंगे जिसपे GST चार्ज होता है? सर जो भी मतलब सेल पे तो विल बी हम लोग GST चार्ज करेंगे, एंड अदरवाइज जो भी हम परचेज कर रहे हैं वहां पे भी GST लग के आएगा, जो हमको GST पे करना पड़ेगा. Yes. So GST input और GST output. Yes, output and input. Right. So all the service GLs and the expense GLs जहां पर GST apply होता है, first thing, and the other side is the sales GL. Okay. Then आते हैं हम लोग posting without tax allowed. Posting without tax allowed. So if any GL sometimes used for GST and sometimes not, then this field will be enabled. In any GL, sometimes used for GST, but sometimes not. Okay. So इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऐसे कुछ GLs, जो GLs sometimes तो GST, या फिर इसको मैं थोड़ा सा और बेटर लिखता हूं, ओके, ठीक है. सो इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि जो भी हमारे GLs हैं, जिन GLs को हम समटाइम्स उस पे टैक्स का इनपुट लेते हैं, समटाइम्स इनपुट नहीं मिलता है, राइट? इफ any GL transaction are used for getting GST input, but at the same GL we don't get the GST input. पॉसिबल है ऐसा?
ऐसे कौन से जीएल्स हो सकते हैं, ऐसे कौन से सिनेरियो होते हैं जहां पर हम समटाइम्स उसका इनपुट लेते हैं, समटाइम्स नहीं लेते हैं, टैक्स का इनपुट? बट in the same GL, we don't get the input. In some transaction are used for getting GST input, but in the same GL, ठीक है। सो कुछ जीएल ऐसे हैं जिसके ऊपर हम समटाइम्स उसका इनपुट चार्ज करते हैं, समटाइम्स नहीं करते हैं, ऐसा कुछ सिनेरियो श्योसी? Sir, I'm thinking. हाँ Sir, so what's wrong? I'm just trying to figure out. Sir, you're asking जब हम इनपुट नहीं लेते, इनपुट क्लेम नहीं करते हैं, जहाँ पर भी सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट प्रोवाइडर के पास जीएसटी ना हो ना, उस केस में तो जीएसटी हम ले ही नहीं सकते ना। तो अगर हमारी जो मतलब परचेजिंग है सपोज 50,000 से नीचे है तो उस केस में हम जीएल वो तो ईवे बिल का रिक्वायरमेंट है। ओके ओके। मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सपोज रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई जाती है। उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुई है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए तो उसका इनपुट मिलता है। अगर वही रिपेयर एंड मेंटेनेंस एडमिन ब्लॉक के लिए उसका इनपुट नहीं मिलता। ओके, डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ, प्रोडक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। राइट, प्रोडक्शन से या आपके रिलेटेड प्राइमरी जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड होना चाहिए। राइट। इफ लाइक जैसे किसी बिजनेस एक्सपेंस में अगर मैं किसी पर्सनल ट्रिप पे गई हूँ तो आई विल नॉट बी एबल टू क्लेम द जीएसटी फॉर दैट ट्रैवल, बट इफ आई एम गोइंग फॉर द सेम, मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम कोटिंग, अगर मैं उस किसी बिजनेस ट्रिप पे गए हो, पर्पस के लिए ही गई हूँ तो आई वुड बी क्लेमिंग अगर आप दैट सेम इनपुट। ट्रिप के लिए गए तो आप बिजनेस से चार्ज ही नहीं कर सकते ना वो तो। Right. So, if I'm going for a business trip only, for the purpose which is directly related to my business, हाँ, उसमें तो क्या होता है ना, आज के टाइम में आप हर केस में चार्ज करते हो। खैर वो तो right, if you quote your GST number on the ticket, I think you can claim it. तो ये जो सिनेरियो है ये वो है कि आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया। अगर आपने मशीनरी रिपेयर करवाया उस केस में जो उस पे जीएसटी लग के आएगा उसका इनपुट आप चार्ज कर पाओगे। अगर वही आपने अपने एडमिन ब्लॉक के लिए अपना कोई कंप्यूटर रिपेयर करवाया, कोई आपने प्रिंटर रिपेयर कराया या आपने कोई वॉल वगैरह आपने कुछ रिपेयर करवाया तो उसका इनपुट चार्ज नहीं कर सकते एज पर दी लॉ। बट कंपनीज क्या करती हैं, सब कुछ प्लांट के नाम पे दिखा देती है, उसका इनपुट चार्ज कर लेती है। सो अब हम क्या करेंगे, मैं चलिए आपको एक एग्जांपल के साथ अकाउंटिंग एंट्री के साथ बताता हूं इसका। रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट, जीएसटी डेबिट, वेंडर क्रेडिट। ये एंट्री होगी इनपुट चार्ज, नॉट चार्ज इनपुट। ये एंट्री होगी। ये बनेगा। कोई डाउट इसमें? तो यहां पर टैक्स लगा ही नहीं। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो गया, ये आपका एडमिन के लिए।
मेरे माइंड में कुछ और एग्जांपल्स आ नहीं रहे हैं, अदरवाइज इसके और भी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो हम यहां पर इसको एनेबल करेंगे। बट ये जो जीएल है सैलरी प्रोविजन का जीएल है, तो ना तो ये टिक होगा बिकॉज सैलरी पे कोई जीएसटी नहीं चार्ज होता है। फिर आते हैं हम रिकंसिलिएशन, फिर आते हैं रिकंसिलिएशन अकाउंट। So there are 5 account types. So these three are sub ledger and this is ledger. इन सब लेजर की जो है वो डिपेंडेंसी है लेजर के ऊपर, क्योंकि आप किसी भी वेंडर के अंदर विदाउट जीएल पोस्टिंग नहीं कर सकते। एग्जांपल लेते हैं, आप जब टैली में कोई वेंडर का लेजर क्रिएट करते हो तो वहां पर आप सन्ड्री क्रेडिटर्स का ग्रुप लगाते हो, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल्स के अंदर दिखता है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखता है, वेंडर नहीं दिखता है। जो वेंडर का टोटल आपका बैलेंस है, कंसोलिडेटेड बैलेंस है, वो बैलेंस का जो नेट बैलेंस है वो बैलेंस आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स में दिखाई देगा। वहां पर वेंडर की डिटेल नहीं होती है। अगर आप क्लिक करेंगे, ड्रिल डाउन करेंगे तो आप देख पाएंगे, बट बैलेंस शीट के अंदर कभी जो फाइनल बैलेंस शीट होती है, जो लास्ट उसका जो ग्रुप होता है, पार्ट होता है, उसमें कभी वेंडर की ग्रुपिंग नहीं आती। एक सेकेंड होल्ड करिए। यस फॉलो। हेलो, यस फॉलो। क्या कह रहे हैं? सो ये हमारे सब लेजर्स हैं, ये हमारा लेजर है। तो यहां पर ये सब लेजर ये है एडीके। सो ऑल द कस्टमर्स, वेंडर्स एंड assets are linked with these three, राइट। जितने भी सन्ड्री डेटर्स होंगे सब डी के साथ होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स के साथ होंगे और एसेट सारा ए के साथ होगा, फिक्स एसेट सारा ए के साथ होगा। तो अभी ये जीएल हमारा एसेट रिलेटेड नहीं है। देन विल कम टू दिस ओपन आइटम मैनेजमेंट व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओपन आइटम मैनेजमेंट, दी जीएल्स which are with the GLs which are इसको मैं इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। Okay, GLs which open item management are the GLs cannot carry the balances, which cannot carry their balances, and has to be clear after 1 month और हम लिख सकते हैं इसमें which has to be clear monthly basis, quarterly basis or yearly basis. The GLs which cannot carry their balances and has to be clear on monthly basis, quarterly basis or yearly basis, those GLs are maintained with the open item management. ऐसे कौन से GLs होते हैं जिन GLs के बैलेंसेस आपकी मैनेजमेंट को कभी भी
बिकॉज ये आपकी बुक्स में वो बैलेंसेस कभी जीरो, बिकॉज आप कभी बैलेंसेस को कैरी नहीं कर सकते। जिन जीएल्स को दैट हैज टू बी क्लियर ऑन मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस, जिन जीएल्स के अंदर कभी बैलेंस नहीं हो सकता है। ऐसे कौन से जीएल्स हो सकते हैं? क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट है? अल्ताफ, हेलो। जी सर। टीना, श्रेयसी, सर क्वेश्चन तो क्लियर है। क्वेश्चन इज Question is clear. Yes. So question is clear. Just thinking. ऐसे P&L बैलेंस शीट में ऐसे कौन से जीएल्स होते हैं जिनका बैलेंस आप मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे क्लियर करते हैं? Those GLs cannot carry the balance. सैलरी अकाउंट सर। हाँ, सैलरी कौन सा? सैलरी? हाँ। सैलरी का आप कभी उसको क्या क्लियर करते हैं सैलरी को? सर बैंक डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स, like FDs or RDs. but those are not forcefully actually cleared. Or I just mention one more thing. Those are forcefully cleared. Those are forcefully cleared. Electricity bill expenses like नहीं, क्लियर कब होता है वो? क्लियर करना क्या मतलब है? वो आप तो अच्छा एक बात पेमेंट बताइए। करते हैं तब क्लियर हो जाता है। ना ना ना, पेमेंट किसकी करते हैं आप? पेमेंट वेंडर की करते हैं, बिल एक्सपेंस की नहीं करते हैं। ड्यू होता है सर, पहले बिल ड्यू होता है। हाँ, तो आपका जो हम पेबल एक्सपेंस की है, एंट्री नहीं, आपका जो एक्सपेंस है वो तो हो गया। आप एक्सपेंस की पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप पेमेंट वेंडर की कर रहे हैं। राइट। राइट, तो आपको क्या करना है? वेंडर को क्लियर करना है। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, इट्स द फर्स्ट पॉइंट विच हैज टू बी क्लियर्ड। बट ये भी फोर्सफुली नहीं है, ये भी फोर्सफुली नहीं है। अगर सपोज वेंडर की पेमेंट नहीं करना चाहते हो आप, तो आप नहीं करोगे। बट ऐसे कौन से जीएल्स हो सकते हैं आपकी बुक्स में जो फोर्सफुली जीरो होते हैं? the taxes. यस, जीएसटी और टीडीएस और इसके अलावा और इसके अलावा हाँ, कस्टम्स हो सकता है। कौन से? जो ड्यूटीज पे करते हैं हम, ड्यूटीज पे करते हैं हम जो। मुझे आवाज नहीं आई। ड्यूटीज सर, ड्यूटीज मतलब ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है ना, जैसे वो तो आ गया ना, उसी में आ गया, जीएसटी और टीडीएस में। और इसके अलावा कस्टम भी ड्यूटीज में आ गया ना, उसी में ही आ गया। हाँ, टैक्सेस में, ड्यूटीज में ही आ गया वो। और इसके अलावा क्या हो सकता है? ऐसे कौन से जीएल्स होते हैं जिसका बैलेंस आप मंथ बाय मंथ कैरी नहीं करते हैं? और अगर वो कैरी हो रहा है, दैट मींस इट्स नॉट दैट अप टू दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और आपकी अकाउंटिंग अलाउ नहीं करती है वो। दैट मींस उसमें कहीं कुछ मिसमैच है आपकी अकाउंटिंग में। डेप्रिसिएशन। कौन से? हाँ, डेप्रिसिएशन तो हो गया ना, उसको क्या करोगे आप? तो वो लाइक वी चार्जिंग इट फॉर एवरी मंथ और बाय द एंड ऑफ द नहीं, ईयर लेकिन आप उसको चार्ज कर रहे हैं, बट उसको फर्दर क्या करते हैं आप उसका डेप्रिसिएशन का? हम एसेट्स में से उसको लेस कर देते हैं। उसको तो आप फर्दर तो कुछ भी नहीं करते हो डेप्रिसिएशन का। सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। नो, एक्सपेंस तो कभी हो ही नहीं सकते ना, एक्सपेंस तो कभी क्लियर होते ही नहीं है। एक्सपेंस तो हो गया तो हो गया। ये जीएल्स एक्सपेंसेस P&L के तो है ही नहीं, ये बैलेंस शीट के जीएल्स है। आपने जितने जीएल्स के अब तक नाम दिए हैं वो सारे बैलेंस शीट हैं।
जिसमें टीडीएस है, टीडीएस लाइबिलिटीज हैं, जीएसटी लाइबिलिटीज हैं, वो सब आपकी बैलेंस शीट जीएल्स है। हाँ, चलिए मैं आपकी स्टेटमेंट्स को थोड़ा रिफाइन करता हुआ जाता हूँ। और बताइए सर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है? इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड की बात कर रहे हो आप? सर नहीं, मैंने इंटरेस्ट ही बोला था। इंटरेस्ट या इम्प्रेस्ड? Interest, which can be an expense as well as revenue. No, because we have already discussed cannot maintain P&L GLs. Provisions, प्रोविजन के जीएल का बैलेंस कभी होता है? नो। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल या प्रोविजन क्रेडिट। सपोज ये 100 रुपीज है, राइट? आपने ये पोस्ट किया 31/05/2020, राइट? 07/06/2020 को आप पेमेंट करते हो डेबिट बैंक क्रेडिट। क्या ये 95 हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है? हो सकता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है फिर? फर्दर क्या इम्पैक्ट है इसका अगर 95 है तो 5 इसका बैलेंस रिमेनिंग रहेगा। आउटस्टैंडिंग रह जाएगा। क्या करोगे उसका? तो उस बैलेंस का 5 रुपीज का क्या करोगे? इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, आपकी मैनेजमेंट एग्री करेगी कि प्रोविजन अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दो और बाद में पेमेंट जितना हो उतना करो और उसको कैरी करते रहो? नहीं, प्रोविजंस में से ही मतलब अप टू द जितना प्रोविजन बना हुआ है सर, उसी में से पेमेंट हो सकती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जितना प्रोविजन है उस अमाउंट को अगर आप क्लियर नहीं कर रहे हो फ्यूचर में, तो उतने अमाउंट से प्रोविजन को रिवर्स होता है। लेकिन ये प्रोविजन कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो हो सकता है 1 या 2 महीने के लिए हो रहे हैं, वो 3 महीने के लिए हो रहे हैं, बट फोर्सफुली 0 होते हैं ये। ओके, तो सर ये रिवर्स कर दिए जाते हैं। रिवर्स का मतलब क्या? 5 रुपीज से आप रिवर्सल एंट्री पास कर दोगे इसकी, तो रिवर्स हो गया। तो आपके जीएसटी के जीएल्स, टीडीएस के जीएल्स, प्रोविजंस के जीएल्स प्लस कुछ और एसएपी रिलेटेड क्लियरिंग जीएल्स हैं, वो हमारे ओपन आइटम मैनेजमेंट रहते हैं। पर्पस क्या है करने का? बिकॉज दिस जीएल हैज टू बी क्लियर्ड इन फ्यूचर। Those GLs cannot carry their balances. Right? तो ये हमारा 100 होगा। Okay, so there are 3 status of any document. First is open item, second is cleared items, third is posted item. अभी हम इसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इस जीएल को ओपन आइटम रखेंगे या नहीं रखेंगे? ये जीएल ओपन आइटम होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। ओ अरे, सैलरी प्रोविजन है, क्यों नहीं होगा? सर एज एन ओपन आइटम मतलब हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे ना? इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, लेकिन इसको आपको क्लियर तो करना है।
अच्छा एक चीज क्लियर बताइए, कर। अच्छा एक चीज बताइए, आपकी मैनेजमेंट वेंडर की रिपोर्ट्स में क्या देखना सबसे ज्यादा उसके लिए मतलब एक सेकेंड सॉरी, ऐसी कौन सी वेंडर की रिपोर्ट्स हैं जो उसको सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है? वेंडर की कौन सी रिपोर्ट मैनेजमेंट देखना चाहती है? सर क्रेडिट बैलेंसेस एज इन आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, यस राइट, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखने के लिए उसको यहां टिक करना पड़ता है, तभी वो आउटस्टैंडिंग दिखता है, ओके राइट। तो ओपन आइटम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? द जीएल विच आर येट टू क्लियर्ड आर Okay. ओपन आइटम्स, the GLs which are not cleared yet are open items, और जिसको आपको फ्यूचर में ओपन देखना है, जिसको आपको फ्यूचर में क्लियर करना है। ओके, इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, सो आई जस्ट मेंशन इट हियर। तो ये जीएल सिर्फ बैलेंस शीट के हो सकते हैं। बैलेंस शीट में कौन से जीएल्स हैं? दोज आर येट टू क्लियर्ड बट हैज टू बी क्लियर्ड, राइट। यस सर। जिन जीएल्स को आपको क्लियर करना है वो जीएल आपके बैलेंस शीट के होंगे। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ऐसे बैलेंस शीट के कौन से जीएल हो सकते हैं जिसको ओपन आइटम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है? वो सभी जो जीएसटी टैक्स या प्रोविजंस नहीं, जिनको ओपन आइटम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। शेयर कैपिटल का जीएल होगा? सर वो तो उतना, सर वो तो इट विल नॉट चेंज एज इन, राइट। सो उसको ओपन आइटम नहीं करते हैं, बैलेंस शीट है बट ओपन आइटम नहीं करते हैं, राइट। कैश इन हैंड, सर इसका तो अमाउंट चेंज होगा। नहीं, चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, क्या क्लियर करना रिक्वायर्ड है? नहीं, क्यों? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जो भी है अवेलेबल सर, मंथ टू सर, मंथ कैरी फॉरवर्ड होता है सर। बट हम उसको ओपन आइटम में रखेंगे तभी हमको उसका बैलेंस दिखेगा। बैलेंस तो वो हर केस में दिखेगा, लेकिन वो ओपन तो आइटम रखना है या नहीं then रखना है not डिसाइड ये requ- करना है। सर नहीं रखना फिर तो। क्यों? सर बिकॉज वो उसको हम उसका तो बैलेंस अगर चेंज भी हो तो उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब वी आर नॉट प्रोविजनिंग इट। राइट। देखिए क्या है, इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ स्टेटमेंट को। वो जीएल, अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कैश इन हैंड का जीएल है, आपके हाथ में सपोज पेटी कैश है, आपको आज मैनेजमेंट ने 5,000 रुपए दिया खर्च करने को, क्या आप लास्ट 5,000 रुपीज का जो लास्ट पेनी है, क्या वो खर्च करने के बाद नेक्स्ट पैसा लोगे? नहीं सर, नहीं। इन बिटवीन आपको रिक्वायरमेंट लगा तो आपने 3,000 रुपए और ले लिया, राइट। आपके पास 1,000 रुपीज पेंडिंग था, 3,000 और हो गया, 4,000 हो गया, तो उसको जीरो करने की कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। right? That's what we don't keep that GL as a open item management. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर काफी डिपेंडेंसी आ गई। ठीक है सर, हमको पिछली क्लास में भी थोड़े डाउट्स आए हैं। बताओ। मतलब मैं कह रही थी कि मतलब आप एक डाउट सेशन भी रख दिया करो वीक में 1 डे। टीना, मेरा फंडा पता क्या रहता है, मैं सोचता हूँ कि आप लोग का जो पहला सेशन है ना, स्टार्ट हम लोग आपके डाउट से ही कर सकते हैं। हम लोग स्पेसिफिक अगर डाउट सेशन रखेंगे ना, तो उसमें क्या होता है, समटाइम्स किसी के बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, किसी के नहीं है।
एक सेकंड होल्ड करिएगा। यस परेश, हेलो, यस परेश, या